बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन मुबारकन फ़ी। वेल डियर स्टूडेंट्स, ये है आज का हमारा लेसन जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस मिस्टेक्स। मिसलेनियस मिस्टेक्स एक्चुअली कोई ख़ास टॉपिक का नाम नहीं है। It's just because we are going to discuss so many rules in it. That is why we have named it as a miscellaneous mistakes. To understand this topic of this grammar, you need to go through this first practice. Here you can see this sentence written over there. Computer is an electronic device. And number two, computer accepts data. And number three is computer performs calculations with high speed and computer produces results accurately. There are four sentences and all four different sentences, all four independent sentences. This is a bit advanced level lecture or advanced level topic. Before this, we have already understood it, what is dependent clause and what is independent clause. And you can see all these four sentences are independent clauses. And next, I want to join it. And you see this, I joined this sentence using which sentences like I join this sentence like computer is an electronic device who accept data, it performs calculations with high speed and produce results accurately. And if you have a little bit sense of this, this is only one sentence. I have joined these four sentences into one sentence. And before joining, when I joined this sentence, you can see this lots of mistakes are there in this sentence. And before correcting these mistakes, I would like you to solve it yourself. So computer is an electronic devices who is a relative pronoun here and accepts the verb, and you can see the mistakes over here. It performs calculations with high speed and produces results accurately. There are there are more than 3 to 4 mistakes in it, and here is the correction. Yes, computer is an electronic devices. It should be wrong. Who cannot be used here except should be there. It performs calculation. It is also a mistake, calculation with high speed and produce result accurately. These are all the mistakes. This is the correct form of this. Computer is an electronic device that accepts data, performs calculations speedily, and produce results accurately. You see that there are almost one, two, three, four, five, and six mistakes we could find over it. How we could find these six mistakes? Because of these following points. The very first one is the redundancy or repetition mistakes. The second one is parallel structure mistakes. Third one is verbosity, wordiness, and prolixity. You can also write it. And this is collocation mistakes. Well, students, there are four types, four branches of related to this topic. The first one is redundancy. Second is parallel structure. Third is verbosity, wordiness, and prolixity. And the fourth one is collocation mistakes. We will discuss one by one. What is redundancy? Like redundancy, repetition, or the other one is parallel structure. The third one is verbosity, and fourth one is collocation mistakes. Uh, अगर आप ये जो मैंने आपके सामने ये जो सेंटेंस बोला था, ये वाला जो सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैंने ये सेंटेंस आपके सामने बोला और अगर आप इसको करेक्ट कर सकते थे, तो अगर आपने ज्यादातर बच्चों ने ये करेक्ट किया होगा, और ये इसकी फाइनल सिचुएशन है। अगर आपको यहाँ से ऑलरेडी आती हैं चीजें, तो इसका मतलब है कि आपको ये चार टॉपिक्स जो है ना बड़ी जबरदस्त तरीके से आते हैं। आइए जरा डिटेल से देखते हैं ये कैसे चार टॉपिक्स हैं। पहला हम बात करेंगे रिडेंडेंसी मिस्टेक की। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। ये जो रिडेंडेंसी मिस्टेक्स या रेपिटेशन मिस्टेक्स की ये जो है वो टॉपिक्स हैं। देयर आर 10 in number. The very first one is double use of subject, double use of repetition, double use of conjunction, double use of relative pronoun, and double use of interrogative, double use of adjective, double use of negative, double use of future tense, and double use of past perfect, and two words same meanings. तो ये first आपके सामने नजर आ रही है जी। Norma picked up the package, opened the door, and she entered the room. इसमें आप देखते हैं
कि डबल यूज ऑफ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, नॉर्मल सब्जेक्ट है। इस नॉर्मल के लिए अगला वर्ड जो है ना वो शी भी यूज किया गया। जब एक ही टॉपिक है, एक ही सब्जेक्ट है, तो दोबारा शी यूज करने की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे शी जो है वो रॉन्ग है, रिडंडेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास डबल यूज ऑफ प्रपोजिशन का मतलब ये है कि एक वर्ड के लिए एक ही प्रपोजिशन यूज किया जाता है, और एक वर्ड के लिए मैंने आपको प्रपोजिशन के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन। ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, और नाउन से पहले इस्तेमाल होने के बाद क्या करता है, ये किसी दूसरे वर्ड को लिंक करता है। तो यहाँ देखते हैं, देयर वाज नो एक्सटर्नल लॉ stating with precision the facts to which it applied to। तो ये apply to भी है, और there was no external law stating with precision the fact which it implied। तो ये जो टू की प्रोनाउंसिएशन है, ये एक एक्स्ट्रा वो जो है ना वो टू नजर आ रहा है यहाँ पे। देखें, देयर वॉज नो एक्सटर्नल लॉ starting with precisions the fact to which this one is a to which it applied, that's all। एक और टू लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, double use of conjunction during the inquisition Jack was asked that। अब asked भी एक किस्म की जो है वो कंजंक्शन है, उसके बाद that भी कंजंक्शन है। ये दोनों सॉरी, that के बाद if कंजंक्शन है, तो हम ask के बाद that नहीं लगाते हैं, और ask के बाद that नहीं लगता, if लगता है, इसलिए हम ये दो, और वैसे भी that और if इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होते। तो ये डबल यूज ऑफ कंजंक्शन की मिस्टेक है। इसके बाद दिस वाज द कंपनी दैट विच, अगेन दिस वाज द कंपनी दैट विच ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे, ये भी मिस्टेक है हमारी। इसके बाद ये डबल यूज ऑफ इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्या करता है कि क्वेश्चंस वर्ड होते हैं, asked is already a question, and after that is a why did is also a interrogative, we don't use all together, them we don't use together। So my teacher asked me why I did not follow, I did not follow होना चाहिए था, my teacher asked me why I did not follow his instruction। तो here is the beta is the problem। नेक्स्ट में आप देखते हैं कि डबल यूज ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर साउंड ट्रेवल्स मोर बेटर। आप देखें ये एडजेक्टिव मोर भी एडजेक्टिव है, बेटर भी एडजेक्टिव है, और डबल एडजेक्टिव्स का जो कंपेयर डिग्री है वो इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है। इसके बाद यहाँ देखें द यूज ऑफ नेगेटिव, शी हैड बेयरली नॉट एस्केप्ड, बेयरली ऑलरेडी नेगेटिव है, नॉट भी हमने इकट्ठा इस्तेमाल कर लिया, तो ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे यहाँ भी। बट ही डिड नॉट स्टॉप हर फ्रॉम परफॉर्मिंग हर फादर, द गैस रिमेन, द टैग्स रिमेन एक्टिव आफ्टर वी हैव लेफ्ट द स्टोर। अनलेस, अनलेस भी नेगेटिव है, अनलेस के बाद नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डबल यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब ये होता है कि ये भी फ्यूचर है वेल, और ये वाला भी। एक ही सेंटेंस के अंदर दो फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं होते। इफ़ यू विल कम इन टाइम नहीं होगा, इफ़ यू कम इन टाइम होगा। यहाँ पे इफ़ यू वुड लर्न योर लेसन इन द गिवन टाइम यू वुड बी प्रमोटेड, यहाँ पे भी हमने वुड यूज़ किया, और यहाँ पर भी वुड इस्तेमाल कर दिया, जो कि रॉन्ग होगा। इस तरह से डबल यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस भी इस्तेमाल नहीं होता। आई हैड डिस्प्लेड द मोस्ट, यहाँ पे देखें हैड डिस्पैच्ड है, और यहाँ पर भी हैड रिकॉर्ड है, ये दोनों एक सेंटेंस में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे। इस तरह से हमारे पास टू वर्ड्स वन मीनिंग वाले वर्ड है। आई वेंट यू टू रिटर्न माई बुक बैक, तो रिटर्न और बैक दोनों का मतलब सेम है। तो ये सारी 10 की 10 रिडंडेंट मिस्टेक्स हैं। हमने इसकी प्रैक्टिस की और मैंने आपको एग्जांपल भी दी। अब हम देखते हैं मजीद इसकी डिटेल के साथ। देखिए यहाँ पे डबल यूज ऑफ सब्जेक्ट है जी। डबल यूज सब्जेक्ट के अंदर बेटा ये दो सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, क्या आप इसके दो सेंटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं मिस्टेक्स को? नॉर्मा पैक्ड इट अप द पैकेज, ओपन द डोर एंड शी, यहाँ पर जो है वो जारी बात है प्रॉब्लम होगी, हम इसको पहले बात कर चुके हैं। द पीपल हु नो हाउ टू स्पेंड बीनीथ द बर्डन दे ग्रो, तो दे ग्रो वेल इन लाइफ, ये दे ये भी हमारा प्रॉब्लमेटिक है, ये हमारा गलत है, दे नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। डबल यूज ऑफ प्रपोजिशन में हम देखते हैं कि देयर वाज नो एक्सटर्नल लॉ स्ट्रेंथ विच प्रिसिशन ऑफ फैक्ट विच इट, देखें दिस टू और दिस टू ये रिडंडेंट है, ये वाला टू और ये टू, ये हमारा मिस्टेक होगा। इसके बाद फॉर व्हाट यू, फॉर हमारा प्रपोजिशन ऑलरेडी आ गया। फॉर व्हाट यू, फॉर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो देखें ये भी फॉर है और ये भी फॉर है,
तो फॉर व्हाट यू आर यू वेटिंग स्टैंडिंग देयर, या ऐसे कर लें, क्योंकि उसने इसको ऑनलाइन नहीं किया हुआ, इसको ऑनलाइन किया हुआ, तो ये हमारी मिस्टेक होगी। हम यहाँ शुरू करेंगे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है ना, वेटिंग फॉर। इस तरह से दिस इज द टेबल ऑन विच आई एम प्लानिंग टू पुट दिस वास ऑन। तो देखें आई एम प्लानिंग, दिस इज द टेबल ऑन विच, ये ऑन ऑलरेडी आ चुका हुआ है, दोबारा ऑन लिखने की जरूरत नहीं थी, ये प्रॉब्लम होगा, ये मिस्टेक है हमारी। इस तरह से लिटिल रॉबर्ट फेल ऑफ ऑफ टू द, ये ऑफ का मतलब भी गिरने के होते हैं, और ये दोबारा देखें ऑफ यहाँ पर आया हुआ, ये मिस्टेक है। इस तरह से आई शेल बी देयर एट 10 o'clock, तो आई शेल बी देयर एट अबाउट, एट भी लिखा हुआ है, अबाउट भी लिखा हुआ है, अबाउट काटेंगे एट सही होगा। ठीक है जी, ये डबल यूज ऑफ प्रपोजिशन है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल यूज ऑफ कंजंक्शन। हम जानते हैं कंजंक्शन दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ देखें ड्यूरिंग द इंक्विजिशन जैक वाज आस्क्ड, अब आस्क के बाद हम दैट या इफ में से कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं, दोनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होते। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट बट इवन देन नो वन इज पेइंग हीड, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आई वांट टू एक्सप्लेन द पॉइंट, एक और आगे बट के बस से पहले कॉमा, इवन देन ये भी एक और कंजंक्शन है, ये कट ये यहाँ पर नहीं आएगा। हम कहेंगे आई वांट टू एक्सप्लेन द पॉइंट बट नो वन इज पेइंग हीड, ये इवन देन इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद सिंस ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिसीव द वर्ड टू अवार्ड सो, अब देखें सिंस भी डिपेंडेंट क्लॉज का मार्कर है, सो भी डिपेंडेंट क्लॉज का मार्कर है, लिहाजा हम इसको एक को हटाएंगे, यहाँ पे सिंस को निकाल देंगे। वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिसीव द अवार्ड, सो नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये हम इसको सो को निकालेंगे। सिंस ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिसीव द अवार्ड ही इनवाइटेड अस टू पार्टी, तो ये नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, जी बेटा आप सही कह रहे हैं जी। जिसके बाद नंबर 4 पे, इफ आई विन द ग्रैंड प्राइज इन द लॉटरी, अब देखें इफ से हमने सेंटेंस का आगाज कर दिया, अब दोबारा देन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा। इफ आई विन द ग्रैंड प्राइज इन द लॉटरी कॉमा आई विल बाय न्यू हाउस इन द सिटी। तो ये क्वेश्चन है जिससे हम मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डबल यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन हम जानते हैं हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो उसकी कौन सी मिस्टेक है यहाँ पे, दिस वॉज द कंपनी, दैट विच नहीं आएगा, दिस वॉज द कंपनी विच ऑलवेज इंस्पायर्ड मी टू वर्क हार्ड टू गेट माई गोल, या ये भी क्या जाए, दिस वॉज द कंपनी दैट ऑलवेज इंस्पायर्ड मी टू वर्क हार्ड टू गेट। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द मिस्टेक्स डन। नेक्स्ट हमारे पास है डबल यूज ऑफ एजेक्टिव। इसकी एग्जांपल ये है कि साउंड ट्रेवल्स मोर बेटर नहीं आएगा, दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री हैं, कंपेरेटिव डिग्री एक लफ्ज इस्तेमाल होगा। आवर प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट चीपेस्ट नहीं होगा, या होगा आवर प्रोडक्ट्स आर द चीपेस्ट। ये मोस्ट और ये सुपरलेटिव डिग्री इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे। डबल यूज ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं हम इसको। तो माई टीचर आस्क्ड के बाद हम वाई डिड नहीं लगाते, माई टीचर आस्क्ड मी व्हाई डिड आई नॉट, आई डिड नॉट फॉलो होगा, वाई डिड नॉट आई फॉलो नहीं होगा। वैसे भी डिड नॉट के साथ हम ईडी नहीं इस्तेमाल करते। तो माई फादर आस्क्ड मी वेयर हैव आई प्लेस्ड नहीं होगा, माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई हैव प्लेस्ड के साथ इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी डबल यूज ऑफ नेगेटिव, और शी हैड बेयरली नॉट। देखिए ये जो बेयरली नॉट है ना, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसके साथ हम नॉट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। बेयरली इटसेल्फ नेगेटिव है, उसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। और शी हैड बेयरली escaped disinherited but that did not stop her, यहाँ पे मिस्टेक है। The tag remains active after we have left the store unless के बाद हम नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करते, unless they switched off होना चाहिए था। इसके बाद the thief denied के बाद did not नहीं आता। Evidence you have presented before the jury is certainly not irrefutable। Irrefutable is already negative word, उसके साथ हम not का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह से Tom does not go there, seldom ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके साथ भी हम डज नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। ये लिस्ट है रही आपके सामने, हार्डली, स्कार्सली, नीदर, नॉर, नॉन, नॉट, अनटिल, अनलेस, ऑफन, नेवर, डिनाइड और रिफ्यूज। ये वर्ड जब कभी भी सेंटेंस में आ जाएं तो उसके बाद हम नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करते। डबल यूज ऑफ फ्यूचर टेंस में हम कहेंगे इफ़ यू विल कम देते, बेटे देखें ये विल भी फ्यूचर है और ये विल भी फ्यूचर है। एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में, याद रखिएगा एक ही सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, एक ही सेंटेंस में ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे। ये होगा इफ़ यू कम इन टाइम यू विल गेट बेटर,
if you would learn your lesson in the given time, you would be promoted to the next class. यहाँ पे देखें if you would गलत है, if you would नहीं होता, if you learn your lesson in the given time, यहाँ पे ये learned आ जाएगा, if you learnt your lesson in given time you would be promoted to the next class. ठीक है class, ये डबल यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट भी इसी तरह ही है, आई हैड डिस्पैच्ड और हैड कैंसल्ड रिकॉर्ड एक ही सेंटेंस में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होते। ये हम बात कर चुके हैं डबल यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट की टेंस सीक्वेंस के अंदर, कि अगर माजी में पास्ट में दो एक्शन हुए तो दोनों एक्शन के अंदर जो एक्शन उससे भी पहले हुआ, एक एक्शन से पहले हुआ, वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। आई हैड डिस्पैच्ड द अमाउंट आई प्रॉमिस बिफोर यू हैड रिकलेक्टेड रिकॉल्ड मी अबाउट दैट। इससे पहले कि आप मुझे याद करवाएं, मैंने आपके याद करने से पहले ही आपको पैसे भिजवा दिए थे। तो दिखाएं उसने आपको याद पहले किया है कि आपने पैसे पहले भिजवाए, तो जरी बात आपने पैसे भिजवाए हैं तो आप आई हैड डिस्पैच्ड करेंगे और यहाँ पे कैन बिफोर यू कॉल्ड मी अबाउट दैट के साथ, तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ चेंज कर देंगे इसको। ठीक है क्लास, तो ये हमारा हुआ आज का टॉपिक। टू वर्ड्स सेम मीनिंग्स में क्या मुराद है। आई वॉन्ट यू टू रिटर्न माई बुक, देखें यहाँ पे बैक भी और रिटर्न भी इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे। इस तरह से ये जो सर प्लीज़ रिपीट में अगेन, तो रिपीट भी और अगेन भी वही होता है, अगेन नहीं आएगा। तो ये एक लिस्ट आपके सामने, एडवांस फॉरवर्ड नहीं होता, कंटिन्यू ऑन नहीं होता, कॉपरेट टुगेदर नहीं होता, एंटर इनटू नहीं होता, ज्वाइन टुगेदर नहीं होता। ये सारे जो है ना रिडंडेंट वर्ब्स हैं, आप इसको देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये भी एक लिस्ट है। एडवांस प्लानिंग नहीं होता, ब्रीफ समरी नहीं होता, ब्रीफ ऑल्ट समरी ही होती है। क्लोज इंटीमेट्स, ये दोनों वर्ड इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे क्योंकि ये रिडंडेंट है। एम्प्टी वॉइड, रेड सूट, एक्सेप्ट सेम, ये पास्ट हिस्ट्री नहीं होता। ये बेटा जी सारे वर्ड्स आप इसको देख सकते हैं। इन लफ्ज़ों को देखने के बाद ये रिडेंडेंसी वाले मिस्टेक्स हैं। ये भी एक लिस्ट आपके सामने है। 12 मिडनाइट नहीं होता, मिडनाइट होता है। 12 नून नहीं होता, नून होता है। ये एग्जैक्टली द सेम, बट ये आप इसको खुद देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये डोंट यूज दिस बिकॉज दे आर रिडंडेंट। ठीक है जी, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और हमारी एक तो हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, ये रिडंडेंसी वाला टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्बोसिटी और वर्डिनेस का। ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको जल्दी से मैं कोई दे देता हूँ, इसका इंट्रो दे देता हूँ। ये देखें, आई लव द पर्सन हु बिकेम अ कॉज टू ब्रिंग मी टू दिस स्टूपिड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट लेडी हु मैरिड हिम बाय चांस। तो ये इसका सिंपल वर्जन ये है कि आई लव माई डैड। अब देखें, आई लव माई डैड की बजाय इतने लफ्ज़ कहना वर्बोसिटी होगा। इस तरह से ये जैसे आपके सामने एक लफ्ज़ आया हुआ है, एक और एग्जांपल देखें। वर्बोसिटी टू और वर्डीनेस इज स्पीच और writing that uses more words than necessity, for example in spite of the fact that, rather than or although वगैरह यूज करना। और इस तरह से देखें, for all intents and purposes the reason Mr. Henderson's arrived late for work was due to the fact that he stopped at very many traffic lights that were red in color। देखें 31 वर्ड्स हैं, उसकी बजाय आप ये कह सकते हैं मिस्टर हेंडरसन arrived late for work because he stopped at many red lights। तो ये 13 वर्ड्स में, तो ये वर्बोसिटी है, ये टू द पॉइंट लफ्ज है। तो ये भी एग्जांपल देखें, यहाँ पर एक और एग्जांपल आप देख रहे हैं। द मैन हु ब्रोक डाउन द हाउस इन माय नेबरहुड इज स्टिल रिक्वायर्ड बाय पुलिस। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको आप कैसे सिंपल कर सकते हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा जो इसको सिंपल कर सकता हो, बल्कि ये 3 सेंटेंस बना सकता हो। द मैन हु ब्रोक डाउन द हाउस इन माय नेबरहुड इज स्टिल रिक्वायर्ड बाय पुलिस। एनीबडी हु कैन चेंज इट इनटू 3 or 4 वर्ड्स। वर्बोसिटी करेक्ट नहीं है, वर्बोसिटी करेक्ट नहीं है, वर्बोसिटी रॉन्ग है। जी वजह जी, एनीवन आप में से कोई बच्चा इसको सॉल्व करना चाहे, आपके लिए मैसेज ओपन है, आप इसको कर सकते हैं। सिंपल लिखें, द बर्गलर इज स्टिल रिक्वायर्ड बाय पुलिस, द बर्गलर इज स्टिल एट लार्ज, द बर्गलर इज स्टिल एट लार्ज। 4 लफ्जों में आपने इसको सारा बयान कर दिया। तो ये है आपकी वर्बोसिटी वाला। नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है जी, he found his neighbor who lived next door to be attractive in appearance, he found his father neighbor attractive। तो ये वर्बोसिटी है फर्स्ट, और ये उसका स्मॉलर वर्जन है। एक और एग्जांपल देख लें, he was really late so his English class due to the fact that he had to finish his math test, तो he was late for English because he had to finish his math test। ठीक है जी, आई होप सो यू गॉट दिस वर्बोसिटी, वर्डिनेस एंड प्रोलेक्सिटी मिस्टेक्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये एक एग्जांपल है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं।
ही फाउंड हिज नेबर हु लिव नेक्स्ट डोर टू, तो ही फाउंड ये हमने बात कर ली गई। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक है ये पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर है। पैरेललिज्म स्ट्रक्चर ये कहता है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर इकोनॉमी, क्लैरिटी, इक्वलिटी और डिलाइट होना चाहिए। तो जैसे ये लिखा हुआ है, आई हैव अ ड्रीम दैट माय फोर लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी indulged by the color of their skin, by the content of their character. I have a dream today, मार्टिन लूथर किंग की बात है। तो my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. अब देखें इसमें यहाँ पर भी ask not what your country लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ask what not लिखा हुआ है। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर है। अगर आपने एक वर्ड सेम लिखा है तो आगे वर्ड भी सेम लिखेंगे। मजीद एग्जांपल देखते हैं इसकी कि किस अंदाज से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिएगा, थिंकिंग एंड रनिंग, ये देखें एंड से जो दो वर्ड जोड़ रहे हैं ये सेम होने चाहिए। यहाँ भी थिंकिंग है तो यार यहाँ भी रनिंग है। आई डोंट इंजॉय थिंकिंग और रनिंग, यहाँ पे थिंकिंग और के साथ और एंड से पहले वर्ड सेम होने चाहिए। सेम उनका मतलब ये नहीं कि वर्ड वो लस बलस सेम हो, बल्कि का मतलब है उनका जो ग्रामेटिकल टर्म है वो सेम है। जैसे ये आईएनजी वाला है और ये भी आईएनजी है। यहाँ देखें, शी लुक्स टू लुक बट नॉट टू लिसन। टू लुक और टू लुक, ये भी टू इन्फिनेटिव है, ये भी टू इन्फिनेटिव के साथ आया हुआ है। इसके बाद यू विल फाइंड द लाइट बल्ब इन द क्लोजेस्ट, और यहाँ देखें और से पहले इन द क्लोजेस्ट, उसके बाद अंडर द किचन, तो दोनों और से पहले दोनों वर्ड सेम है। इस तरह से वी वंडर्ड हु ही वाज, एंड से पहले और बाद में वर्ड सेम है। इसको पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसकी हम मजीद एग्जांपल देख लेते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर मिस्टेक्स क्या होती हैं, या तो ये देखें, नाउन के साथ नाउन आएगा, वर्ब के साथ वर्ब आएगा, एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव आएगा, फ्रेज के साथ फ्रेज और क्लॉज के साथ क्लॉज आएगा। दीज थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी आर प्लेइंग विद माई किड्स, अ गुड कप ऑफ कॉफी एंड व्हेन आई डिस्कवर न्यू म्यूजिक। अब आपको यहाँ समझ लग जाएगी ये सेंटेंस कैसे पैरेलल का स्ट्रक्चर है। थ्री थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी आर, देखें प्लेइंग विद माई किड्स, देखें प्लेइंग विद माई किड्स एक, और दूसरा अ गुड कप ऑफ टी। अब मुझे देखें, अ गुड कप ऑफ टी में ये नाउन फ्रेज है, प्लेइंग विद माय किड्स ये एक आईएनजी फ्रेज है, और एंड व्हेन आई डिस्कवर, और ये व्हेन आई डिस्कवर ये क्लॉज है। तो ये क्लॉज, ये नाउन फ्रेज और ये पैरेलल, ये सारी फ्रेज डिफरेंट है। इसको इसलिए पैरेलल स्ट्रक्चर वाली मिस्टेक है। इसको कैसे सही करेंगे? माय फेलो अमेरिकंस, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर रेफरेंस टू। तो ये हमने सही किया। इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको देखते हैं अगर क्या किया हुआ। वी विल सेट द वर्ब, नहीं यहाँ पे नहीं सही। इसको देखिए कैसे सही करेगा, इसको मैं आपको सामने सही कर देता हूँ। थ्री थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी आर प्लेइंग विद माई किड्स, हैविंग अ गुड कप ऑफ टी एंड डिस्कवरिंग न्यू म्यूजिक। तो ये मैंने डिस्क सब के साथ आईएनजी के साथ करके इसको ठीक कर दिया। तो जैसे थिंकिंग एंड रनिंग, आई वुड एंजॉय थिंकिंग और रनिंग। यहाँ पे टू लुक और टू लिसन है। यहाँ पे इन द, ये हमने बात पहले कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद है पैरेलल स्ट्रक्चर मिस्टेक्स की हम बात करते हैं। जैसे माय अंकल लाइक्स टू ईट, अगर यहाँ पे टू ईट है इन एक्सपेंसिव, तो एंड से पहले और बाद वाले वर्ड सेम हो जाए, तो यहाँ पे भी टू विजिट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे टू विजिट लिख दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, माय फ्रेंड नेवर जज माय बॉय माय वर्ड्स, और यहाँ देखिए माय वर्ड्स और यहाँ व्हाट आई डिड है, ये नाउन है और ये क्लॉज है। इसको कैसे सही करेंगे? माय वर्ड्स और माय एक्शंस के साथ सही कर देंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल ये है, ये सीरीज ऑफ वर्ड्स, सीरीज ऑफ इन्फिनेटिव्स, सीरीज ऑफ प्रेपोजिशन फ्रेजेस और सीरीज ऑफ क्लॉजेस। अगर वर्ड्स हैं जैसे ये मनी, पावर एंड सिक्योरिटी, ये सेम वर्ड है। यहाँ पे अगर टू इन्फिनेटिव टू डू है तो यहाँ पे टू रिक्वेस्ट है, यहाँ भी टू एक्सप्लेन होना चाहिए था। यहाँ पे सीरीज ऑफ प्रेपोजिशन फ्रेज अगर इन द क्लॉज लिखा है तो अंडर द सिंक और इन द कैरी, ये सारे सेम होने चाहिए, क्योंकि ये बट नॉट के साथ हमने इसको जोड़ा हुआ है। सीरीज ऑफ क्लॉजेस के अंदर वाई आर यू, हु यू आर, हाउ यू गॉट देयर, और ये सारे सेम होने चाहिए, है पैरेलल स्ट्रक्चर। इसके बाद फॉल्टी, ये देखें, द बर्ड्स एम्फसाइज कलेक्टिव सर्वाइवल, म्यूचुअल एड एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये फ्रेजेस को हमने गड़बड़ कर दिया। इसको कैसे सही करेंगे? कलेक्टिव सर्वाइवल, म्यूचुअल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे नाउन है तो सभी नाउन रखेंगे, फ्रेज में नहीं चेंज करेंगे हम। इसके बाद यहाँ देखें, ये क्या किया, टू एक्सचेंज है, टू obtain, टू इन्फिनेटिव आ रहा है, और ये शी वांटेड हमने क्लॉज बना दिए। इसको भी टू एक्सचेंज, टू obtain और टू स्पीक के साथ चेंज कर देंगे। चलें जी, इसके बाद हमारे पास और पैरेलल स्ट्रक्चर मिस्टेक्स आ रही हैं। ये भी ड्राइविंग और फ्लाइंग, ये ठीक है। ड्राइविंग टू न्यूयॉर्क एंड देन फ्लाइंग एंड ही रिजॉल्व टू वर्क,
मरियम्स एबिलिटी टू कम अप विद, इसको कैसे ठीक करेंगे? ये देखें, ये सही है सेंटेंस, ये बिल्कुल सही है। ये देखें, आई लाइक स्विमिंग बेटर देन टू, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी स्विमिंग है और ये स्विमिंग आईएनजी है और ये टू इन्फिनेटिव है। इसको सेम कर दिया हमने स्विमिंग और ड्राइविंग, या टू स्विम और टू ड्राइव के साथ सेम कर दिया हमने इसको। अच्छा, ये व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, बीइंग जेम्स फ्रेंड मींस बीइंग कम्स, ये सारी चीजें सेम है बिल्कुल। चलें जी, ये पैरल स्ट्रक्चर की मजीद एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको पॉज करके बाद में देख सकते हैं। You can see it and read it by yourself. नहीं, अब ये कोलोकेशन मिस्टेक्स हैं। कोलोकेशन मिस्टेक ये कहती है, जैसे आई आई लिसन म्यूजिक नहीं होता, आई लिसन टू म्यूजिक होता है। प्ले सॉकर बॉल नहीं होता, सॉकर बॉल ऑनली होता है। कोलोकेशन मिस्टेक्स का मतलब ये है कि दो वर्ड, दो लफ्ज सेम आने चाहिए, एक तरतीब के साथ आते हैं। ये एक एडवांस लेवल एक्सरसाइज है, ये बेशक इसको ना कीजिएगा। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको स्क्रीन को रोक के इसको पढ़िएगा। इसमें कॉलोकेशंस मिस्टेक्स हैं। मतलब ये है कि जो लफ्ज़ लिखा ना, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, और जैसे ये लिखा हुआ है ईजियर सेड देन डन, और ये बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स हैं सारी, और इस मिस्टेक्स को यहाँ पर करेक्ट करके दिया हुआ है। आप इसको, ये करेक्ट फॉर्म में है, आप इसको दोनों को रिलेट करके पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि किस अंदाज से हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बच्चों, ये मैंने बड़ी तेज़ी के साथ आपको ये चीज़ें सारी जो है वो मैंने बोली हैं आपके सामने। तो ज़ाहिर बात है कि ये सारा नई चीज़ें आपके लिए हैं, तो इट ऑलवेज टेक्स टाइम्स टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तवज्जो से, तो चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपके अभी माइक ऑन कर लेता हूँ और लाइव आपसे सवालात ले लेता हूँ कि कितने बच्चों के इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो चलें बेटा जी, मैंने आपके माइक कर देता हूँ ऑफ ऑन, तो आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा।